ہم نے اپنے ہاتھوں سے کرنل داور کی تدفین کی ہے تو دشمن کا بھی ایک آدھ آدمی گرنا چاہیے۔ اس نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ کبوں کے کوسنے سے ڈھور مرنے لگتے تو آج ہم بھی سبزی خور ہوتے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سب کچھ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتا، دیکھتے ہیں کہ ٹام کب ہماری دھار پر آتا ہے۔ وہ مجھے روکتا رہ گیا لیکن میں واپسی کا قصد کر چکا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں آ کر میں نے اپنے وقت کا بہترین مصرف تلاش کیا تھا۔ ٹام کرنل داور سے پرپیچ باتیں کرتا تھا۔ اس نے اول خان سے گفتگو میں اپنے دل کا سارا غبار نکال لیا تھا۔ اس کی نیت اور ارادوں کے بارے میں ہماری سوچی ہوئی ہر بات درست نکلی تھی۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے میرے بدترین انجام کا خواہاں تھا، اسی طرح میں اسے ہر قیمت پر نیچا دکھانے کا آرزومند تھا۔ میں گھر پہنچا تو جلال مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا۔ ڈرائنگ روم میں اس کے ساتھ سلطان شاہ بھی موجود تھا، لیکن اس کی میزبانی کا بیشتر بوجھ ویرا نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ پورے زور و شور کے ساتھ اسے کسی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آج سرکاری ریکارڈ کے مطابق تم اپنے ایک روپ میں مرحوم و مغفور ہو چکے ہو۔ جلال نے مجھ سے ملتے ہی پرتپاک انداز میں کہا، کس سرکاری ریکارڈ کی بات کر رہے ہو؟ کرنل داور ایک خیالی افسانہ تھا، کس سرکاری ریکارڈ میں اس کا اندراج تھا؟ ویرا نے برجستہ سوال کیا۔ زندگی میں اس کا کہیں ریکارڈ نہ رہا ہو، خودکشی کے بعد قبرستان کے ریکارڈ میں اس کا نام ضرور آ چکا ہے۔ جلال نے خوش دلی سے اسے یاد دلایا۔ اول خان بہت زیرک اور پھرتیلا آدمی ہے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اس کی لیک کی ہوئی خبر تیزی سے اپنا سفر طے کرتی ہوئی ہمارے دشمن تک پہنچ گئی ہے۔ خبر واقعی تیزی سے پھیلی ہے۔ کرنل داور کو ایک زندہ کردار سمجھنے والے بہت سے افسران اس خبر کی تصدیق کے لیے ادھر ادھر فون گھما رہے ہیں۔ جلال بولا، یہ پتہ چلنا چاہیے کہ تمہاری حریفوں کے کیمپ میں اس خبر پر کیا رد عمل ہے؟ وہ سامنے آ چکا ہے، میں نے کہا۔ ٹام نے کہیں اور بھٹکنے کے بجائے براہ راست اول خان کو فون کیا تھا۔ ساری گفتگو میری موجودگی میں ہوئی ہے، وہ اس خبر پر بہت خوش ہے۔ تم خاموشی سے ادھر کیوں نکل گئے تھے؟ ویرا نے پوچھا۔ اپنی خودکشی کے پروگرام پر دل اداس تھا، جہانگیر سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ٹام نے اپنی کئی چال بازیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ خبر ان کے لیے طمانینت کا باعث بنے گی۔ جلال بولا، ٹام نے جس طرح الفا کو داؤ پر لگا کر تم کو مروانے کی ناکام کوشش کی تھی، اس سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ اب تمہارا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مجھے مروانے میں ناکام رہا، اب اس کی باری ہے۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جلال کے ہونٹوں پر استضاحی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کچھ کہو یا چپ رہو، میری مدد تو کرتے رہو گے نا؟ میں نے پوچھا۔ اس بارے میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، میرے دو آدمی اس وقت بھی کونسل خانے کے باہر موجود ہیں۔ وہ اپنے شب و روز وہیں بسر کر رہا ہے۔ اس قلعے میں گھسنا محال ہے، اسے وہاں سے نکلنا چاہیے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے الفا کو بھی وہیں روکا ہوا تھا، وہ کب تک وہاں محصور رہ سکے گا؟ کونسل خانے میں آسائشوں کی کمی نہیں ہے، جلال نے بتایا۔ اس آس ملکوں میں ان کی سرکاری عمارات بہت وسیع و عریض ہوتی ہیں، جہاں سوئمنگ پول سے سنوکر تک کی سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں۔ ایسی منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی برے وقت میں ان کے شہریوں کی ایک معقول تعداد وہاں پناہ لے سکے۔ ٹام ایک لمبی مدت تک وہاں رہ سکتا ہے۔ تم اپنی کتھا سناؤ، ویرا نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری تدفین کے علاوہ دوسری اطلاعات بھی بہت دلچسپ ہونی چاہیے۔ اس روز جہانگیر سے پہلی مرتبہ کھل کر باتیں ہوئی تھیں، جن کا تعلق صرف میری ذات سے تھا۔ اس نجی گفتگو کا ہمارے کاموں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ذکر گول کر کے میں نے دوسری تمام باتیں پوری جزیات کے ساتھ دہرانا شروع کر دیں۔ میرے پہنچنے کے بعد غزالہ بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ ان چاروں نے گہری دلچسپی کے ساتھ وہ تفصیلات سنی۔ اس دوران میں میری بیشتر توجہ جلال پر مرکوز رہی تھی۔ واقعات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات میں پل پل تبدیلی آ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کرنل داور کا کردار ختم ہوتے ہی ہماری صفوں میں ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد جلال نے طمانینت سے بھرپور لہجے میں کہا، لیکن اول خان نے بہت کامیابی سے یہ خلا پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کماش کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے چاروں کھونٹ چوکس رہنا پڑتا ہے۔ ویرا نے اقرار کیا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اول خان نے یہ مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا۔ اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ جلال نے توقف کے بعد اپنی بات آگے بڑھائی۔ ٹام سے اس کی اتنی لمبی گفتگو ہوئی تھی تو اسے کرنل داور کے حوالے سے کوئی ایسا شوشہ بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ ٹام اسے فوری طور پر ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ بیچارہ اول خان ذہنی دباؤ کے عالم میں کیا سوچ سکتا تھا؟ ویرا نے اول خان کی طرف تاری کی۔ بس اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے۔ میں جلال کے خیال سے متفق ہوں، میں نے کہا۔ اور کچھ نہیں تو کرنل داور کی چھوڑی ہوئی کسی ڈائری کا ذکر کیا جا سکتا تھا۔ ٹام اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اپنے کانوں سے ساری باتیں سننے کے باوجود اس وقت یہ نکتہ تمہارے دماغ میں نہیں آیا ہوگا۔ تو بیچارہ اول خان کیسے یہ بات سوچ سکتا تھا؟ ویرا اپنی بات پر اڑی رہی۔ یہ بحث بے سود ہے،
अब आने वाले वक्त पर निगाह रखो। जलाल ने बुर्दबारी से कहा। अब सारा इंहिसार तुम्हारे आदमियों की रिपोर्ट पर है। हम में से कोई इन इतराफ में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। इनकी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। जलाल मेरी बात के जवाब में बोला। वो पल पल की खबरें देते रहे कि दोनों तजर्बेकार आदमी हैं, वो काब जैसी निगाहें रखते हैं। मैं ये भी बता दूं कि अब इस मुहिम में हमारा जुबानी कलाम ही साथ रहेगा, अमली फैसले तुम्हारे होंगे। इस मैदान में मेरा कोई आदमी तुम्हारा साथ नहीं दे सकेगा। इसे वो बात कहने की जरूरत नहीं थी। वो ज़ाब्तों की सख्ती से पाबंदी करने वाला अफसर था। इसे ये तवक्का अबज़ थी कि वह हमसे अपने मरासम निभाने के लिए सरकारी पॉलिसी से तजावुज़ करके किसी बदनीयत अमरीकी अफसर की गोशमाली में हमें अमली मदद फराम करेगा। टाम के चक्कर में हमने सोबराज को फरामोश कर दिया है, मैंने धीरे से कहा। ग्रीन कोबरा की वजह से इस वक्त वो ज्यादा अहम है, उस पर भी काम हो रहा है। उसका सुराग मिल जाए तो हम बेखौफ होकर उसे रगेज सकते हैं। टाम के मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इससे सिर्फ तुम निमट सकते हो। यही वजह है कि मैंने तुम्हें इस पर अपनी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा है। जो सामने है उसे घेरने की कोशिश करो। सोबराज भी जल्द ही सामने आ जाएगा। इस वक्त तक तुम टाम से निमट चुके होगे। तुमने अपने तौर पर काम बांट लिया है, लेकिन मालूमात में शराकत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, मैं नरमी से कहा। सोबराज के बारे में क्या पेशरफ्त हुई है? फिलहाल सन्नाटा है, जलाल बोला। मैंने बैंकॉक वाले आदमी को होशियार कर दिया है। इससे छोटे राजन का जाती मोबाइल फोन नंबर भी मिल गया है। सोबराज ने उतर कर रुख किया तो हमें बिला ताखीर इत्तला मिल जाएगी। मैं किसी तरफ से गाफिल नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में वो फौरी तौर पर यहाँ से नहीं जाएगा, वीरा पुरख्याल अंदाज में बोली। किसी न किसी तरह ये बात जल्द ही सामने आ जाएगी। वो सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैंने जलाल से राजन का फोन नंबर मांग लिया। दूसरे मसाइल में उलझ कर वो नुक्ता मेरे जहन से निकल सकता था। जलाल को पहले से मेरी फरमाइश का अंदाजा था। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया और खुद वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम्हारे इस अंदाजे की कोई ना कोई बुनियाद जरूर होगी, उसने वीरा से कहा। अभी तक वो डैनी के नाम पर अमेरिकियों से सौदेबाजी की कोशिश कर रहा था। शायद डैनी के बदले FBI उसके नाकर्दा गुनाह को मुआफ कर देती, लेकिन जहांगीर की बाजियाबी ने सोबराज की बसात उलट दी है। वो मरकर भी दोबारा इस पोजीशन में नहीं आ सकता। अब उसके हाथ में ग्रीन कोबरा कार्ड है। उसे अपनी जिंदगी अजीज है तो इस पर कोई समझौता करने की कोशिश करेगा। इसके लिए वक्त दरकार है। वो यहाँ रुकने पर मजबूर हो जाएगा। सोबराज ने मुझसे ग्रीन कोबरा की नीलामी के बारे में जो हर्जा तराई की थी, वो मेरे लिए उसके जज्बाती उबाल से ज्यादा वक़्त नहीं रखती थी। इस मामले में वीरा ने बहुत कवी इम्कान की निशानदही की थी। सोबराज के पास काले धन की कोई कमी नहीं थी। अपनी तमाम तर बदनसीबी के बावजूद वो बहुत खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करने का अहल था और जिंदगी उसके लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बनी हुई थी। जब तक FBI वाले उसे मुआफ नहीं करते वो सुख की नींद नहीं सो सकता था। इस मौजू पर जलाल के जहन में कई सवाल मचल रहे थे। इन पर इत्मीनान हो जाने के बाद वो हमसे रुखसत हुआ तो सोबराज के मामले में वो वीरा का हम ख्याल हो चुका था। कुछ देर के बाद मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। इस वक्त मेरे जहन में ख्यालात के गर्दाब बंद और बिगड़ रहे थे। मेरे लिए टाम और सोबराज दोनों ही अहम हरीफ थे। अपनी सहूलत के लिए इनमें से किसी एक को नजरअंदाज करके दूसरे पर पूरी तवज्जो मरकूज करना मुनासिब नहीं था। दोनों मोहलक और मोजी दुश्मन थे। इन पर बैक वक्त निगाह रखनी जरूरी थी। फिर गजाला भी कमरे में आ गई। दूसरे मसाइल के बावजूद जहांगीर से होने वाली बातें मेरे दिल पर एक बोझ बनी हुई थी। मैंने बहुत नरमी और चाहत के साथ गजाला से जाती मौजू पर बात छेड़ दी। हम लोग रात के खाने से फारिग होकर ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे कि मेरे मोबाइल फोन पर जलाल की कॉल आ गई। तुम्हारी दुआएं रंग ले आई हैं। टाम अपनी कमीनगाह से निकलकर साहिल समंदर की खुली फिजा में पहुंच चुका है, उसने पुरजोश आवाज में बताया। खबर बहुत अच्छी है, उसकी तफसीलात क्या हैं? मैंने पूछा। आज 14वीं नहीं लेकिन चांदनी रात है, जलाल कह रहा था। टाम 2 गाड़ियों में 7 नफरी कारवां लेकर शब बसरी की पूरी तैयारी के साथ हाक्स बे के सनी हट पर पहुंचा है। एक गाड़ी में उसके साथ एक और मर्द और 2 औरतें थीं। दूसरी गाड़ी में सवार तीनों आदमियों ने अपने असलहे के साथ हट के गिर्द अपनी जगह संभाली है। वो कमांडोज मालूम हो रहे हैं। 2 मर्द, 2 औरतें, 3 कमांडोज और शब बसरी के लवाजम। मैंने उसकी बताई हुई तफसील दोहराते हुए कहा। मालूम होता है कि वो कर्नल दावर की मौत का मादर पिदर आजाद जश्न मनाने की नीयत से वहां पहुंचा है। 2 मर्दों के लिए 2 औरतों की मौजूदगी बता रही है कि रात गहरी होने तक वहां तरबो निशात की महफिल सज चुकी होगी। मालूम यही हो रहा है, उसने मेरी तायद की। तुम 2 औरतों के लिए 2 मर्द भी कह सकते हो। इन लोगों की जदीद मुआशरत में जिनसे इज्जत व असमत का तसव्वुर नापैद हो चुका है, इसे जिस्मानी तफरीह का एक दर्जा दे दिया गया है। इनकी अखलाकियात पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये सोचो कि इस वक्त हमारा हदफ एक साहिली वीराने में मौजूद है। मैंने उसकी बात काट कर कहा। हमारा नहीं, सिर्फ अपना हदफ को। उसने मेरी तस्दीक की। और ये भी सुन लो कि आज हफ्ते की रात है,
शहर के मनचलों की खासी तादाद वहां पहुंची हुई है। साहिल पर खासे हट आबाद नजर आ रहे हैं। कोई भी प्लान बनाते हुए इस बात को मलहूज रखना होगा, वो साथ हैं, साहिल पर दूसरे लोग भी आए हुए हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा नफरी दरकार होगी। मुझे अव्वल खान को टरोलना पड़ेगा, मैंने तफक्कुर अमेज अंदाज में कहा। मेरे ज़हन में हाक्स बे की साहिली पट्टी का नक्शा जमना शुरू हो गया था। जनरल की तरफ से पाबंदियां हटाए जाने के बाद वो तुम्हारा साथ दे सकेगा। जलाल ने अपना ख्याल जाहिर किया। आज की रात तुम्हारे लिए फैसला कुन है, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। मेरा मशवरा है कि जो कुछ करना है 2 बजे के बाद करना। शराब के बगैर इनका कोई जश्न पूरा नहीं होता। वो 2 जोड़े हैं, इस वक्त तक नशे में धुत हो चुके होंगे और आसानी से देर हो जाएंगे। तुमको तीनों कमांडो से असल मुकाबला करना होगा। इनके लिए बहुत ज्यादा आदमियों की जरूरत पेश नहीं आएगी। तुम्हारे दोनों आदमी कब तक वहां रहेंगे, इन्हें भूल जाओ। अपने बारे में वो खुद फैसला करेंगे। फिलहाल वो वहीं मौजूद हैं। कोई नई बात सामने आई तो वो फौरन मुझे इतला देंगे। ओके जलाल, मैं इन तफसीली मालूमात के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारी सलामती और कामयाबी के लिए दुआ को रहूंगा। इन कलमात के साथ फोन खामोश हो गया। इस खबर पर हमारे दरमियान जोश और सनसनी की एक लहर तोड़ गई। गजाला समेत हर एक इस मुहिम पर जाने के लिए कमर बस्ता नजर आ रहा था। मैंने अव्वल खान को फोन करने का इरादा किया, मगर फिर रुक गया। 2 ऐश कोश जोड़ों को मुकाबले से खारिज करके 3 कमांडोज रह जाते थे। वह हट के गिर्द मौजूद और आने वाले वक्त से बेखबर थे। हम पूरी तैयारी के साथ इन पर शब खून मारते तो इन तीनों को जहन्नुम वासिल करने के लिए हम चारों काफी थे। इजाफी नफरी अपने साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कुछ देर तक इस मिशन के नशीब व फराज पर गौर करता रहा। हमारे पास पिस्तौल, रिवाल्वर, बीम गन और जहरीली अंगूठियों जैसे दस्ती हथियार मौजूद थे, जबकि इस मुहिम के लिए लंबे रेंज के जदीद हथियार ले जाने जरूरी थे, जो अव्वल खान ही हमें फराम कर सकता था। फायरिंग के नतीजे में पुलिस की मुदाखलत मुतवक्का थी। इससे निमटना हमारे बस से बाहर था। मुझे इस जश्न के दूसरे शुराका से कोई सरोकार नहीं था, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि टॉम को जिंदा कैदी बनाया जाए। इस ख्वाहिश की तकमील की सूरत में उसे हाक्स बे से शहर लाना एक दुश्वार तरीन मरहला था। जलाल इस मामले से बिल्कुल अलग था। टॉम को सिर्फ स्टेशन 4 ले जाया जा सकता था। वो एक खतरनाक और बड़ी मुहिम थी। इसमें अव्वल खान की अदम शमूलियत की वजह से हमारी अव्वलीन कामयाबी किसी भी मरहले पर बदतरीन नाकामी और संगीन मसाइल से 2-4 हो सकती थी। वो बहुत वाज़ेह खतरात थे। मुझे इस बारे में किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने इस फैसले पर पहुंचते ही अव्वल खान से मोबाइल फोन पर राब्ता कर लिया। इस वक्त वो अपने घर पर आराम कर रहा था। नई खबर सुनते ही वो चौंचाल हो गया। मैं कह रहा था कि मेरी छठी हिस्स मुझे आज की रात भारी पड़ने की खबर दे रही थी। देख लो कि बड़ी खबर आ ही गई। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो साथ हैं तो हम भी 10-12 होने चाहिए। ये रात हम पर नहीं उन पर भारी पड़ेगी। ये कहकर मैंने उसे तफसीलात से आगाह करना शुरू कर दिया। इनमें जलाल के बेश कीमत मशवरे भी शामिल थे। उसने बहुत सकून और तहम्मुल से हर बात सुनी, फिर बोला, जलाल ने तजर्बे के गुर बताए हैं। सब कुछ इसी तरह हो जाता है तो ज्यादा फैलावे की सूरत नहीं है। मैं अपनी जेब में एक आदमी के साथ हथियार लेकर आता हूँ। तुम चारों रवानगी की तैयारी शुरू कर दो। दोनों गाड़ियों में 3-3 की नफरी बढ़ जाएगी। चाहो तो सिर्फ मेरी जीप में चल सकते हो, सब आराम से इसमें समा जाएंगे। इस अहम मिशन में 2 गाड़ियां बेहतर रहेंगी। रास्ते में कोई टायर पंक्चर हो गया तो बिला वजह कोफ्त होगी, मैंने हंस कर कहा। उसने अपनी गाड़ी और उसके टायरों की शान में कुछ कसीदे सुनाए, मगर असूली तौर पर मैं तजवीज़ मान ली। इस सुनहरे मौका के इंतजार में हम कब से गिन गिन कर घड़ियां काट रहे थे। सब कुछ यकायक इतना आसान नजर आने लगा जैसे हम हाक्स बे के सनी हट पर पहुंचेंगे और टॉम दस्त बस्ता हमारे सामने आ जाएगा। आने वाले वक्त की हम में से किसी को खबर नहीं थी। अव्वल खान का घर हथियार खाना नहीं था। जरूरी हथियारों और मैगजीन वगैरह के लिए उसे अपने घर से स्टेशन 4 जाना था। वो हर तरह से फारिग होकर ठीक 11 बजे हमारे पास पहुंच गया। टॉम से हमारी जाती लड़ाई चल रही थी, जिसके असबाब की जड़ें कौमी सलामती के अहम तरीन मामलात तक जाती थीं। लेकिन ये खुली बदनसीबी थी कि वो हमारे कवानीन की नज़रों में मुजरिम नहीं, एक मरात याफ्ता सफारती एहलकार था, जिसे उंगली लगाना भी काबिल ताज़ीर था। हाक्स बे के साहिल पर जमकर इन लोगों का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। वो मुजरिम होते तो इनसे डट कर महाजराई की जा सकती थी। मैं इस मिशन में मारने और भाग निकलने के नजरिए पर कारबंद रहना चाहता था। 12 बजे हम दोनों गाड़ियों में घर से रवाना हो गए। मैं अव्वल खान और उसके आदमी के साथ जीप में सवार था। बकिया तीनों नफूस हमारी गाड़ी में पीछे आ रहे थे। हम वक्त से पहले हाक्स बे पर पहुंचकर हमले से पहले सनी हट और उसके कुर्बो जवार में पाए जाने वाले हालात का गहरी नजर से जायजा लेना चाहते थे, ताकि बाद की इम्कानी दुश्वारियों का पेशगी सद्देबाब किया जा सके। ड्राइविंग में किसी उजलत का मुजाहिरा के बगैर हम मुकर्रर वक्त से बहुत पहले आबादी को बहुत पीछे छोड़कर समंदर के मुतवाजी फैली हुई सड़क पर पहुंच गए।
जहाँ चढ़ती रात की खुनक साहिली हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया। आम दिनों में तारीख और वीरान साहिल के साथ जा बजा रोशनियों के जुगनू चमक रहे थे। जलाल के आदमियों के फराम की इतला के मुताबिक बहुत से हट रोशन नजर आ रहे थे। हवा के दोष पर कभी कभी मुसरत अमेज इंसानी आवाजें और चीखें भी सुनाई दे रही थीं। रास्ते में 3 मकामात पर पुलिस मोबाइलों से हमारा सामना हुआ था, लेकिन किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने महसूस किया कि आम पुलिस वाले अफराद से पहले शानदार गाड़ियों से मरूफ हो जाते हैं। अव्वल खान की चमचमाती हुई जीप उनके सामने हमारी ढाल बनी हुई थी। अपने रकबे, साख्त और बुलंदी की वजह से सनीहट इस इलाके की मशहूर इमारत थी। इस पर जिस फराग दिली से कसीर सरमाया लगाया गया था, इससे अंदाजा हो जाता था कि वह इमारत अमरीकी कौंसलखाने की मलकियत रही होगी। अव्वल खान के वहां पर ड्राइवर ने जीप की रफ्तार कम कर दी। मेरी निगाहें सनीहट पर मरकूज हो गईं। दरमियान में आने वाले नाहमवार टीलों की वजह से इस तरफ की साहिली पट्टी उबर उबर कर माधूम हो रही थी। चांद की ठंडी और धीमी रोशनी में मुझे साहिल वीरान नजर आ रहा था। टाम और उसके तीनों साथियों में से कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। इनके मुहावजों में से सिर्फ एक मेरी नजर में आ सका। वो वसी हट के अकबी चबूतरे पर इत्मीनान से बैठा सिगरेट पी रहा था। सनी हट का गहरा जायजा लेते हुए हम आगे निकल गए। कुछ देर बाद वापसी का सफर शुरू हो गया। इस दौरान में अव्वल खान इस मकाम का तयन कर लिया था। यहाँ से हम अपनी गाड़ियां रेतीली पगडंडी पर उतार कर सनी हट के एक करीबी हट तक पहुंच सकते थे, जो तारीख और वीरान नजर आ रहा था। जीप बाएं तरफ मुड़कर रेत में उतरी तो मुझे दूसरा कमांडो नजर आ गया। वो सनी हट की बगली समत में बेपरवायाना अंदाज में खड़ा हुआ था। उसे हमने भारी वजूद पर मुंडे हुए कपड़ों पर नजर आने वाली गन को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि तीसरा साथी हट के दूसरे पहलू की हिफाजत कर रहा होगा। बज़ाहिर को खतरा न होने के बावजूद वो तीनों नहायत पेशा वाराना अंदाज में अपनी अपनी जगहों पर चट्टान बने हुए थे। तारीख हट से आगे निकलकर जीप रोक दी गई। वहां से सनी हट का बरामदा और अगला हिस्सा बहुत वाज़ेह नजर आ रहा था। वो चारों नहाने के मुख्तसर तरीन लिबासों में रोशन बरामदे में बैठे हुए थे। वस्त में पड़ी हुई मेज पर रखी हुई किसी शराब की बड़ी बोतल दूसरे लवाजम से बहुत मुमताज थी। इतनी दूर से टाम मुझे नहीं पहचान सकता था, मगर फिर भी एहतियात जरूरी थी। मैं खाली हाथ जीप से दूसरी तरफ उतर गया। मुझे ये देखकर कोफ्त हुई थी कि 1:30 बजने के बावजूद वो चारों इस काबिल थे कि साहिल की तरफ से खुले हुए बरामदे में बैठकर खुशगपियां कर सकें। सिर्फ एक बात हौसला अफजा थी कि वो चारों शराबनोशी में मसरूफ थे। इनकी दिलचस्पियां झाग उड़ाते समंदर से हटकर एक दूसरे के जिस्मों तक महदूद हो चुकी थी। मर्दों की छेड़छाड़ और लड़कियों की बेसाख्ता कह के फिजा में तरन्नुम बखेर रहे थे। इससे आगे बहुत से सर फिरे लड़के लड़कियां पानी से अटकेलियां करते फिर रहे थे। वो खुशहाल घरानों के रोशन ख्याल चश्मो चराग थे। इन्हें नीम बरहाना सफेद फामों और इनकी सरगर्मियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहां आए हुए सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम शहर से मीलों दूर साहिल पर आ गए थे, लेकिन किसी के पास तैराकी का लिबास नहीं था। गनीमत यह था कि वहां मुतअद्दिद लोग पांचे चढ़ाकर पूरे लिबास के साथ समंदर की खुनकी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मैंने झुककर पांचे चढ़ाए और खरामा खरामा साहिल की लकीर की तरफ हो लिया। मैं खुद को टाम की नजरों से बजाय रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे अंदाजा था कि वीरा सफेद फाम होने की वजह से मुझसे ज्यादा मुश्किल से दो चार होगी। अव्वल खान का भी मोहतात रहना जरूरी था।